welcome to all BBA aspirant guys. So if you're targeting these exams and want to prepare for the current affairs, which is very important sections for a different exam, for example, Set General, CRIS, MSCET, Xavier, CUT. So in these exams, you will see the current affair related questions. So if you want to improve your current affairs understanding, so watch this weekly current affairs, because here we will see the golden current affairs question, which is most expected for your exams. And guys, if you want to start your preparation under the guidance of the expert faculty, so if you're Mumbai based and nearby these locations, Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali and Pune, so you can join our classroom program. And if you have any doubt and query, so you can call on these numbers. Our counselor will clear it. As well as if you are out of Mumbai and Maharashtra, so online is the best option for you. This is the number 8828581455. Okay, so for any doubt and query, you can call on this number. And for different type of the programs, for example, live, self-study, book and mock test, so you can visit our website. Link is mentioned in a description. So here I will show you guys. So just click on manuaredu.com in a browser. Okay, so manuaredu.com in a browser, you can visit our website. Just click on this button and BBA entrance. So these are the different BBA programs and live, self-study, sectional, mock tests, ebooks. So these are the different type of the programs. So as per your need, you can explore whatever program, for example, live, and you can see all the details, okay, related to program, what you will get exactly in this program. So these program will be helpful for you for your preparation for the different BBA entrance exams. So if you want to score better and want to crack these exam with best score and percentiles, so just explore this program. Okay, now let's see the most important current affairs from this week. So now see the first question. Namrata Batra reached the final in which sports at 2025 World Games? So related to sport personality, if they are part of the news and because of any XYZ reason, and if they created any history or gold medalist. So as a sports point of view, such type of question is very important. At least 2-3 questions you will see in your exam related to sports. So as per this week point of view, Namrata Batra is a part of the news, so she is related to which sports? And if you will see in a detail part, so first remember Wushu is a one type of game related to like Taekwondo and Karate की तरह इस टाइप का गेम है. India's Namrata Batra created the history by reaching the women's 52 kg final at 2025 World Game Chengdu, China today. So इस स्पोर्ट्स में फर्स्ट टाइम इन्होंने फाइनल में रीच किया एज अ इंडियन पर्सन. सो एटलीस्ट वन मेडल तो फॉर श्योर है, सिल्वर मेडल, मे बी पॉसिबल गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, बट एटलीस्ट इन्होंने क्रिएट किया हिस्ट्री. तो देखो ऐसे न्यूज में आपसे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा स्पोर्ट पर्सनालिटी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया है, ट्राई करो रिमेंबर करने का. ऑल द डिटेल्स आर मेंशन हियर, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैन रीड. आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट होंगे उन पे भी ट्राई करो फोकस करने का, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल वहां से भी क्वेश्चन आप देखोगे. जैसे रिसेंटली मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है कॉमनवेल्थ गेम से, सो वो भी अभी हम देखेंगे. देखो यहाँ पे, विच सिटी हैज बीन प्रपोज एज द लीड होस्ट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम इन इंडियाज बीड. सो इंडिया कॉमनवेल्थ 2030 को होस्ट करने के लिए जो बीड कर रहा है, उसमें इंडिया का बीड को एक्सेप्ट कर लिया गया है. तो एज पर दिस न्यूज, बेसिकली इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट host this game in which city? So Delhi, Bhubaneswar, Ahmedabad and Mumbai. And Commonwealth game is a well-known sports event like Olympic, like Asian game. So वर्ल्ड का well-known sports event है Commonwealth nation. जो Commonwealth nation है, जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंदर में रहे हुए हैं, तो उन नेशंस का जो ग्रुप है उसको कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं. तो उन्हीं का स्पोर्ट्स इवेंट है, वेल नोन इवेंट है. सो प्रीवियसली इंडिया ने 2012 में ये गेम कंडक्ट किया था, बट आफ्टर दैट लगभग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इफ इंडिया विल कंडक्ट 2030, तो एक 20 इयर्स के गैप पे फिर से इंडिया कंडक्ट करेगा, अगर से एक्सेप्ट हो गया तो बाय द वे विल सी क्या होता है. सो अभी के लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर अगर से एक्सेप्ट हुआ तो इंडिया विल कंडक्ट इन विच सिटी? Ahmedabad. Okay, and Commonwealth is a well-known sports event. UPSC to celebrate the 100 years of merit-based civil service recruitment from October 2025. Who was the first chairman of UPSC? So देखो यहाँ पे 100 ईयर कंप्लीट हुआ है. यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो रिक्रूटमेंट करती है फॉर द IAS PCS सिविल सर्वेंट के लिए. सो नाउ 100 ईयर कंप्लीट हुआ है. सो एज पर दिस
here one question which may be possible related to static, so just try to remember kya who was the first chairman of UPSC. So chairman of the UPSC, Sir Rose Barker. So UPSC will mark the century year from 1 October 2025 to 1 October 2026, and Sir Rose Barker was the first chairman of the UPSC. And as per constitutions, if you will see, so power defined in article 315 से लेके 323, तो सम टाइम आर्टिकल रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आप देखते हो, इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, सो एज पर दिस न्यूज जस्ट ट्राई टू रिमेंबर जो यूपीएससी से रिलेट करके है वो आर्टिकल 315 से लेके 23 है। तो इस तरह से अगर आप एज पर करंट अफेयर्स अपडेट करते जाओगे तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं होता है, और जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम ओरिएंटेड वो आपको रिमेंबर भी हो जाता है। ओके, सो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि सीरीज को ना कंटिन्यू फॉलो करो, जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसको एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर का अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू फॉलो करोगे सो डेफिनेटली 200% इट इज हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। काफी अच्छे गोल्डन क्वेश्चन है करंट अफेयर से, वीक वाइज हम कवर करते हैं और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। सो अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको कंटिन्यू अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द टाइफून पोडोल। सो पोडोल एक रिसेंट में टाइफून है। टाइफून इट मींस साइक्लोन, साइक्लोन इट मींस ओशियन स्टॉर्म। ओशियन स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? साइक्लोन। इंडियन ओशियन में साइक्लोन बोलते हैं, साउथ चाइना सी में इसको टाइफून बोलते हैं। तो रिसेंट में जितने भी इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वेल्केनो इरप्शन हो या फिर टाइफून हो, वॉट एवर इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज एज अ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो कौन से एरिया को अफेक्ट करेगा? सो ताइवान यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रिमेंबर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। तो इंडिया में होने जा रहा है ऐसा आर्टिफिशियल रेन फर्स्ट टाइम। इससे रिलेट करके 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी कंपनी है जिसके साथ टाई अप हुआ है, क्यों किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेट कर रहा है एज पर द क्वेश्चन यू कैन सी राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। इसके बिहाइंड रीजन ये है कि जो ये डैम काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, यहां पे देख सकते हो, इट्स एम टू रिवाइव द 129 इयर्स ओल्ड डैम विच हैज बीन ड्राई फॉर 20 इयर्स इट है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के थ्रू फिर से इसको फंक्शनल स्टार्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपली कि रामगढ़ डैम सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जाम में आता है ना, हीराकुंड डैम कहां पे है, सरदार सरोवर डैम कहां पे है, इंदिरा गांधी डैम। तो ऐसे जो डैम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी डैम पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स होते हैं वही पूछे जाएंगे। आपसे रामगढ़ डैम पूछ लेगा, आपने टॉप के 10 रिमेंबर करके रखे हैं, रामगढ़ डैम को आपने पढ़ा नहीं है, एग्जाम में वही पूछ लेगा। आप सोचोगे क्यों पूछा? बिकॉज रामगढ़ डैम वाज द पार्ट ऑफ न्यूज, इसलिए पूछा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके अगर आप स्ट्रैटेजी के रीड स्टडी करते हो, अपडेट करते हो, तो आप टू द पॉइंट रहते हो, और वही सारे इंफॉर्मेशन एग्जाम में भी पूछता है। एग्जामिनर ऐसे ही कुछ भी स्टैटिक नहीं पूछता, बिकॉज समथिंग इज पार्ट ऑफ द न्यूज देन इट इज द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ओके, तो ये अगर सेशन कंटिन्यू फॉलो करोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपकी नो डाउट डेवलप हो जाएगी और इंफॉर्मेशन भी काफी कुछ अपडेट कर लोगे। Who has been appointed as a Zomato new brand ambassador for the Fuel for Hassles campaign? तो यहाँ पे न्यू कैंपेन लॉन्च किया है जोमेटो, एक वेल नोन कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी है। यहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है एज अ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन इज हाईली एक्सपेक्टेड, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? शाहरुख खान। जस्ट रिमेंबर। Next, what is the theme of the World Organ Donation Day 2025? So, as an important day point of view, guys, this is a very important and favorite important day जो एग्जामिनर कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता है, किस डे को हम ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। हियर मैंने क्वेश्चन को फॉर्म किया एज पर द करंट अफेयर्स, तो मैं दोनों इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करा दूंगा। शेयर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, आंसरिंग द कॉल, डोनेट फॉर द बेटर टुमारो, सेविंग द लाइफ थ्रू द ट्रांसप्लांट्स। ओके, सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आंसरिंग द कॉल। दिस इज अ थीम फॉर द 2025 एंड 13 अगस्त ऑब्जर्व एज व्हाट? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025। तो बेसिकली 2025 है, तो 13 अगस्त आपको याद रखना है। दिस इज द डे विच व्हेन वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, एंड थीम फॉर दिस ईयर इज व्हाट? आंसरिंग द कॉल। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे रोनाल्ड ली हरिक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट हिज किडनी टू हिज ट्विन ब्रदर इन 1954 एंड मेकिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सो
That's why this day observed as what? World Organ Donation Day. And Dr. Joseph Murray performed this groundbreaking kidney transplant and later received the Nobel Prize for the Physiology and Medicine in 1990. So कितना important information related है इस important day से. Okay, now see the next one. Which organization launched Operation Alert ahead of Independence Day 2025 in border area of Rajasthan? So recent operation is very, very important, guys. So what is the name of the operation which is started by India government to kill Pahalgam terrorist? पहलगाम टेररिस्ट को मारने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या है, इसको आपको कमेंट में मेंशन करना. मैं देखना चाहता हूं 15 अगस्त के बाद कितने लोग इस कमेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन स्टार्टेड बाय द इंडिया गवर्नमेंट टू किल terrorists and terrorists those who are related to the Pahalgam attack. ठीक है, नाउ सी द आंसर. कौन से इंस्टीट्यूशन बेसिकली आर्म फोर्स ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अलर्ट. सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF. सो रिसेंट जो भी ऑपरेशन है वो आपको अपडेट करके रखना. विच स्टेडियम होस्टेड द वर्ल्ड एथलीट्स ब्रोंज टूर 2025 इन इंडिया? सो देखो बहुत सारे स्टेडियम है. हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी स्टेडियम से पूछता है. मैं क्लास में भी लेक्चर लेता हूं तो उनको कम से कम 10-15 स्टेडियम, जैसे कि सरदार पटेल स्टेडियम जो था, जो अभी हो गया है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम प्रीवियसली जिसको बोलते थे, फिरोज शाह कोटला जिसको अभी अरुण जेटली स्टेडियम बोलते हैं. ठीक है, जैसे मुंबई का अगर आप देखो तो वानखेड़े स्टेडियम हो गया. तो ऐसे जो वर्ल्ड इंडिया के जो वेल नोन स्टेडियम है, अगर से वहां पे रिसेंट में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है या फिर कुछ भी रहेगा तो वो स्टेडियम डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा दिस स्टेडियम इज विच स्टेट ऑफ इंडिया. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द 10, 15, 20 स्टेडियम नेम, सो अगर से आपको करंट अफेयर्स में कोई स्टेडियम दिख रहा है न्यूज में, सो जस्ट ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेडियम? सो राइट आंसर इज अ कलिंगा स्टेडियम. कलिंगा स्टेडियम वेरी वेल नोन है, उड़ीसा स्टेट में है. सो रिमेंबर रखो. नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द Garud Drishti project? So Garud Drishti project, basically this is the initiative of the state government to control social media hate speeches, post and other cyber crime related to which is related to digitally and phone क्या बोलते हैं, फाइनेंस से रिलेट करके जितने भी फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हियर द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस initiative? So Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Delhi. So correct answer is Maharashtra. Maharashtra state CM Devendra Fadnavis and unveiled the Garud Shakti social media monitoring and cyber intelligence tools. Okay, next question. Which organization launched the CATCH grant program? CATCH. So what is the name of the institutions? ICMR, AIMS, Indian AI, IBD, NSG, Niti Aayog, WHO and Ministry of Home Affairs and Tata Trust. So what is the name of the institution which started this initiative? So correct answer is India IBD and NSG. So India IBD, Independent Business Divisions and National Cancer Grid, NSG launched the CATCH grant program, support the AI solution for the cancer screening, diagnostic, treatment and healthcare ऑपरेशन. ठीक है, सो इन सब सारी चीजों के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया. तो एक इंपॉर्टेंट रिसेंट प्रोग्राम है. सो जस्ट ट्राई टू अपडेट. विच एरिया इज गुजरात हैज बिकम द सेकंड लायन हैबिटेट आफ्टर 143 इयर्स? सो आप सोचोगे देखो ये न्यूज, अब आपसे पूछेगा वेयर इज अ गिर फॉरेस्ट? एशियाटिक लायन के लिए इंडिया का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप सोचोगे यही नेशनल पार्क क्यों पूछा, रणथंभौर क्यों नहीं पूछ लिया, कुनू नेशनल पार्क क्यों नहीं पूछ लिया, मानस नेशनल पार्क क्यों नहीं पूछा, सुंदरबन क्यों नहीं पूछा, गिर नेशनल पार्क क्यों पूछा? बिकॉज गिर नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ इन विच स्टेट? गुजरात में है. तो गुजरात स्टेट में और गुजरात स्टेट से ये न्यूज है, तो इसलिए आपसे पूछेगा गिर नेशनल पार्क कहां पे है. ठीक है, सो गिर फॉरेस्ट, Pilwara and Vardra area and run of Kutch. So यहाँ पे देखो which area of the Gujarat has become the second lion habitat after 143 years? तो फर्स्ट पे तो गिर फॉरेस्ट है, सेकंड नंबर पे है वर्धा एरिया. वर्धा एरिया जो गुजरात का एरिया है, देवभूमि, द्वारिका, गुजरात. India has the 5 of the world 7 big cat species and Varda, Gujarat designated as the second habitat for the land. फर्स्ट नंबर पे है गिर नेशनल पार्क है एंड गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड कौन से स्टेट में? गुजरात स्टेट. ठीक है. ग्रेट बैरियर रीफ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज
इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर वाटर पॉल्यूशन या इस टाइप के न्यूज देखते हो तो इसको लेकर के कंसर्न काफी देखने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से कंट्री के नियर बाई ये ग्रेट बैरियर रीफ है। सो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सो आपने ऐसे देखा होगा सी में, जो इस तरह से सी में जहां पे पानी का लेवल बहुत कम होता है, तो वहां पे इस तरह के बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो इट कंसिस्ट अबाउट द 2100 individual reef and 8000 of rigging reef with 4000 coral type, 1500 fish species and 4000 mollusk species। तो इतने सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इन सब सारी स्पीसीज कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूज। सो जस्ट रिमेंबर, वेयर इज इट? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री? सो रिसेंटली इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज। सो जस्ट सिंपली एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन रिमेंबर रखो कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द 4 न्यू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, Odisha, Punjab, Andhra Pradesh under the India Semiconductor Mission. So India Semiconductor Mission is a specialized and independent situation operate under the guidance of the Ministry of Electronic and Information Technology, because सेमीकंडक्टर का जो डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जब भी कोरोना पीरियड था, तो उसकी रीजन से इंडिया का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, बहुत सारे ऐसे मशीनरीज हैं जो कि इंपैक्ट हुआ था। तो आफ्टर द लॉकडाउन के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सेमीकंडक्टर को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके। विच टीम ओन द 15 हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025? सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स सेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। तो हरियाणा, पंजाब, झारखंड एंड उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर रिमेंबर रखो, झारखंड। ओके गाइज, so these are the important 15 questions from the different area related to sports, government program, initiative, national, international. So just try to revise and practice करो and update करो yourself and continue इस series को follow करो और वीडियो को like करेगा। So these are the important questions from this week. So hope so guys you people enjoyed this session and just try to revise and practice such type of the question, and if you have any doubt and query, so you can ask in a comment. And if you want to know any information related to program, so this is the number you can call on these number. Okay, so see you in next week with latest current affairs. Till the time, just revise and practice. Thank you and Jai Hind.